حفاظتی اقدامات کے مثبت اثرات، کورونا کا زور کم ہونے لگا۔ ایک دن میں 1579 نئے مریض، ملک بھر میں 2,63,496 شہری متاثر، مزید 46 افراد جاں بحق، اب تک 5,568 اموات۔ سندھ میں 1,12,118، پنجاب میں 89,793 مریض، خیبر پختونخوا میں 31,890، بلوچستان میں 11,424 کیسز۔ سندھ میں پیٹرول پمپس 24 گھنٹے اوپن، بیکریاں صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک کھلی رکھنے کی اجازت۔ اوقات کار میں تبدیلی کا نیا نوٹیفیکیشن جاری۔ خیبر پختونخوا میں شہری بے فکر، کورونا کو بھولنے لگے۔ بازاروں میں ماسک، سینیٹائزرز اور دستانوں کا استعمال تقریباً ختم۔ SOPs پر عمل درآمد کرانے میں حکومتی دلچسپی کم ہو گئی، شہریوں کا شکوہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح میرے پش کے اوپر بازار میں سارے لوگ پھر رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی ماسک نہیں لگا رہا، کوئی انہوں نے گلوز نہیں پہنے ہوئے، ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال نہیں ہے، فاصلہ نہیں ہے۔ کورونا ابھی کم ہوا ہے، بالکل ختم نہیں ہوا۔ ان کو چاہیے کہ اپنی احتیاط خود ہی کریں، ماسک بھی یوز کرنے چاہیے اور سینیٹائزر بھی یوز کرنے چاہیے، اپنی احتیاط کرنی چاہیے۔ جتنے بھی لوگ احتیاط نہیں کرتے، SOPs پر عمل نہیں کرتے، ریسٹورنٹ ہے، دکانیں وغیرہ جتنے بھی جگہ ہے، تو اس کو سیل کرنا چاہیے۔ جو لوگ SOPs کے خلاف کام کرتے تھے یا SOPs کی پاسداری نہیں کرتے تھے تو ان کو جرمانہ کیا جاتا تھا، لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں اتنی خاطر خواہ جو ہے وہ کام نہیں کر رہے۔ کورونا کب تک رہے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ عید الاضحیٰ پر SOPs کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ سماجی فاصلے برقرار رکھنے میں ہی عافیت ہے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار۔ وزیر اعظم کے 5 معاونین خصوصی کی دوہری شہریت، معید یوسف اور شہباز گل امریکی گرین کارڈ ہولڈر، دانیہ دروس کے پاس کینیڈا اور سنگاپور کی شہریت، ندیم بابر امریکی اور ندیم افضل چند کینیڈا اور زلفی بخاری کی برطانوی شہریت۔ معاون خصوصی اور مشیر مالا مال، ندیم بابر 2.75 کروڑ 28 لاکھ کے مالک، تانیہ ایدروس کے ساسو کی مالیت 71 کروڑ سے زائد، زلفی بخاری کی پاکستان میں 1300 کینال اراضی، لندن میں 48,50,000 پاؤنڈ کی جائیداد، اہلیہ کے پاس 5 لاکھ پاؤنڈ کا سونا، عثمان ڈار 6 کروڑ، ظفر مرزا 5 کروڑ 70 لاکھ اور شہباز گل 11 کروڑ 85 لاکھ روپے کے مالک۔ وزیر اعظم کے 5 مشیروں میں سے کسی کے پاس دوہری شہریت نہیں۔ عبد الرزاق داؤد 1.75 کروڑ کے مالک، حفیظ شیخ کے پاس 30 کروڑ سے زائد کے اثاثے، بابر آوان کی جائیداد کی مالیت 16.5 کروڑ، امین اسلم کا 1 کروڑ 37 لاکھ کا بینک بیلنس، اہلیہ کے نام پر 92 لاکھ کی 3 گاڑیاں، شیئرز کی مد میں 50 لاکھ کی سرمایہ کاری۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو اپیل کا حق، وزارت قانون نے آرڈیننس قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی تجویز دے دی۔ آرڈیننس کی مدت آج رات 12 بجے ختم ہو جائے گی۔ 12 سال میں صرف 1000 میگا واٹ کا اضافہ، کہ الیکٹرک روشنیوں کے شہر کو اندھیرے میں دھکیلنے کا ذمہ دار۔ آئے روز احتجاج سے بھی ادارے کا قبلہ درست نہ ہو سکا، اوور بلنگ کے مسائل شہریوں کے لیے وبال جان۔ ہمارے کچھ حقوق ہیں، اگر وہ حقوق کو میٹ نہیں کرتے، کورٹ آف لاء میں ان کے اگینسٹ میں کیس ہونا چاہیے۔ کہ الیکٹرک بہتر نہیں ہو رہی، خراب تر ہو رہی ہے اور ہماری مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، جبکہ بل بڑھ رہے ہیں، ٹیکسز بڑھ رہے ہیں، سارے پیسے کہاں جا رہے ہیں، کہاں لگ رہے ہیں ایک عام آدمی ایک شہری پہ کے لیے، تو یہ بالکل سمجھ کے۔ انسداد پولیو مہم کل سے دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ، 8 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں فیصل آباد، اٹک، جنوبی وزیرستان، کراچی اور کوئٹہ کے کچھ علاقے شامل۔ کورونا کی وجہ سے مہم 4 ماہ سے متاثر تھی۔
तेज रफ्तारी कई जाने ले गई। नवाब शाह के करीब कौमी शाहराह पर बस उलटने से 6 अफराद जाँ बहक। खवातीन और बच्चों समेत 38 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कई की हालत तशवीशनाक। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ैद मलिक। मैं हूँ जवेरिया जैद। मैं हूं उमर दराज गोंदल। दुनिया हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरें तफसील के साथ बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम इल्हाक़े पाकिस्तान मना रहे हैं और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि उस अहद की तजदीद की जाए कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और इसके पाकिस्तान से इल्हाक़ तक जदोजहद आज़ादी जारी रहेगी। पूजा वादी में कश्मीरी भारतीय नाजायज तसल्लुत से आज़ादी और पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ के लिए बरसरे पैकार हैं। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरियों ने नजरियाती तौर पर पाकिस्तान से रिश्ता जोड़कर इल्हाक़ का फैसला किया, जिस पर वो आज भी कायम हैं। और जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इजलास के दौरान कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ की करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर की गई। तारीखी करारदाद में रियासत जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान से मजहबी, जोग्राफियाई, सकाफती और मौशी रिश्तों के तनासुर में पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ पर जोर दिया गया। इस दिन इस अहद की तजदीद करते हैं कि पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ तक तहरीक जारी रखी जाएगी। जज्बे आज़ादी से सरशार कश्मीरियों का आज भी यही नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। भारत ने निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े और ये सिलसिला अब भी जारी है। अब तक 1 लाख कश्मीरी आज़ादी का नारा लगाते जामे शहादत नोश कर चुके हैं। खवातीन की इस्मत दरी की गई, मासूम बच्चों को भी शहीद किया गया, लेकिन आज भी कश्मीरी आवाम पाकिस्तान से इल्हाक़ के लिए बेचैन हैं। चीन के लेके मैं मर भी गया तो मैं मर भी गया तो मेरी कब्र पे लिखना, मेरी कब्र पे लिखना। आज के दिन के हवाले से अपने पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ है। कश्मीरियों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे। कश्मीरियों के नाम अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आज के दिन कश्मीरियों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ की करारदाद मंजूर की थी। सलामती कौंसिल भी कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत तस्लीम करती है। उन्होंने कहा कश्मीरी अवाम भारतीय हुकूमत और उसके वहशियाना इक़दामात के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं। कश्मीरियों की जदोजहद हक़ खुद इरादियत के अज़्म का इआदा है। हम जानते हैं कि वो वक्त दूर नहीं जब इंसाफ का बोलबाला होगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि मुल्क की तारीख में पहली बार वज़ीर आज़म के मुअव्विनीन और मुशीरान के असासों और दोहरी शहरियत की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। 15 मुअव्विनीन में से 4 दोहरी शहरियत, 2 मुस्तकिल रिहाइश और 1 के पास ग्रीन कार्ड है। आज़म की हिदायत पर मुअव्विनीन और मुशीरों ने असासा जात और शहरियत से मुतल्लिक तफसीलात जमा करा दी हैं। शहबाज गिल अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर और तानिया इदरूस के पास कनाडा और सिंगापुर की शहरियत है। मोहिद यूसुफ अमरीका के रिहायशी, जबकि नदीम बाबर अमरीकी शहरियत के हामिल हैं। नदीम अफजल चंद मुस्तकिल कनेडियन रिहायशी, जबकि जुल्फी बुखारी बरतानवी शहरियत रखते हैं। वज़ीर आज़म के 5 मुशीर पाकिस्तानी शहरियत रखते हैं। हफीज शेख 30 करोड़ रुपए से ज़ायद के असासों के मालिक हैं। मुशीर खजाना की अहलिया के नाम दुबई में 13 करोड़ का घर भी है। बाबर अवान विरासत में मिली 16.5 करोड़ रुपए की जायदाद के मालिक हैं। स्पेन में 1 करोड़ रुपए की जायदाद के साथ 47 लाख रुपए की सरमायाकारी कर रखी है। अब्दुर रज़ाक दाऊद 1 अरब 75 करोड़ रुपए और डॉक्टर इशरत हुसैन 1 अरब 70 करोड़ रुपए से ज़ायद के असासों के मालिक हैं। मुअव्विन ख़ुसूसी जुल्फी बुखारी पाकिस्तान में 1300 कनाल से ज़ायद अराजी के मालिक हैं। जुल्फी बुखारी लंदन में 48,50,000 पाउंड की जायदाद भी रखते हैं। उनके पास बैरून मुल्क 5 कंपनियों के शेयर्स हैं। आसिम सलीम बाजवा 15 करोड़ रुपए के असासों के मालिक हैं। गुलबर्ग ग्रीन में 7 करोड़ रुपए मालियत का फार्म हाउस, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में 5 प्लॉट्स भी हैं। नदीम बाबर 2 अरब 75 करोड़ रुपए के मालिक हैं। बैरून मुल्क 2 दर्जन से ज़ायद कंपनीज में शेयर्स और पाकिस्तान में 12 करोड़ 97 लाख रुपए की कमर्शियल अराजी के मालिक हैं।
शहबाज गिल 11 करोड़ 85 लाख रुपए के मालिक हैं। पाकिस्तान में एक प्लॉट, फार्म हाउस और बैरून मुल्क एक घर भी है। डॉक्टर सानिया निश्तर के पास 2 करोड़ रुपए से जायद हैं। मोहिद यूसुफ भी अरबपति हैं। तानिया इदरूस 71 करोड़ रुपए से जायद की असासों की मालिक हैं। अमरीका, सिंगापुर, यूके में उनके नाम पर मुताद्दिद जायदादें भी हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म इमरान खान से गैर मुल्की शहरियत रखने वाले मुशीरों वज़ीरों की बरतरफी का मुतालबा कर दिया। मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा कि इमरान खान साहब गैर मुल्की शहरियत रखने वाले अपने मुशीरों और वज़ीरों से इस्तीफ़ा लें। इमरान खान साहब, आपने कहा था कि ये नहीं हो सकता कि आपकी दोहरी शहरियत भी हो और आप मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले भी करें। आपने ही कहा था कि अगर आपके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट हो तो उसे पार्लियामान में नहीं बैठना चाहिए। उधर वजारत कानून ने कुलभूषण यादव के मामले पर ऑर्डिनेंस कौमी असम्बली में पेश करने की तजवीज़ दी है। ऑर्डिनेंस की मुद्दत इतवार की रात ख़त्म हो जाएगी। वजारत कानून ने ऑर्डिनेंस खामोशी से जारी करने के इल्ज़ामात की तरदीद की है और कहा है कि माज़ी में हुकूमतें इसी तरीके पर अमल करती रही हैं।